سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش مسلح مالک ملوک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو ذریعہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرفہ انگنت اور بے شمار درود و سلام کو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ مقدس و مقررہ رب کائنات نے جن کی رحمت کائنات بنا کر محفوظ کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان فرمایا. گزشتہ جمعہ میں فکر آخرت کے متعلق ہم نے بات شروع کی تھی اور آخرت کی فکر کرنے کی طرف ترغیب دلائی گئی تھی. اور آخرت کی فکر کیوں کریں؟ ایسی کون سی بات ہے آخرت میں جو ہمیں تکلیف دہ ہو یا ہمیں کسی قسم کا نقصان ہونے والا ہے کہ جس کے لیے ہم فکر کریں؟ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد مختلف مراحل سے اس کا گزر ہوتا ہے. اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو قبر کی زندگی اس کو جھیلنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد محشر کا میدان ہے. پھر اس کے بعد آخرت یعنی جنت یا جہنم کا معاملہ ہے. تو ان تمام چیزوں کی فکر انسان کو کرنی ہے. آج انشاءاللہ ہم اس سے پہلے قبر کے بارے میں سن چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ جہنم کے وہ عذاب جس کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
इंशाअल्लाह देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे अंदर इन अज़ाबात से बचने की फिक्र हमारे अंदर आ जाए और फिक्र पैदा करके फिर उससे बचने की हम तैयारी करने वाले बन जाएं। आखिरत यानी जहन्नुम का अज़ाब बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। मुख्तलिफ किस्म के जहन्नुम के अंदर अज़ाबात अल्लाह तबारक व तआला देने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंदरतुकुमुन नार, अंदरतुकुमुन नार, अंदरतुकुमुन नार। लोगों, मैं तुमको आग से डरा रहा हूँ, जहन्नुम की उस भड़कती हुई आग से डरा रहा हूँ। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों उस आग से बचो, खाक खजूर का एक टुकड़ा देकर ही क्यों ना हो। यानी जितना, यानी इसमें जो है सदका खैरात की फजीलत इस हदीस के अंदर बताई गई कि जितना भी आपसे हो सके सदका खैरात करो ताकि तुम जहन्नुम के उस आज़ाब से बच सको। तो इसका माना ये नहीं कि आदमी एक खजूर दे दे और फिर अपनी सारी जिंदगी मनमानी गुजार दे, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दे, अल्लाह का बागी बन के इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार दे। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात की पाबंदी करते हुए फिर अपने माल में से भी मोहताजों को, गरीबों को आप देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में आपको जहन्नुम के अज़ाब से, जहन्नुम की आग से बचाएगा। यानी तमाम आमाल को बचा लाना ये लाजिम और जरूरी है कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, नबी ने बोला कि एक खजूर का टुकड़ा दे दो, मैं एक खजूर नहीं 2 खजूर दे दूंगा, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं रोजे नहीं रखूंगा, मैं हज नहीं करूंगा, मैं ज़कात नहीं दूंगा, सदका खैरात नहीं करूंगा, कोई सा भी मामलात नहीं करूंगा, बस 1-2 खजूर दे दिया। बात ऐसी नहीं है। ये किसको बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सहाबा को बोले। सहाबा को नमाज पढ़ो बोलने की जरूरत नहीं थी, रोजा रखो बोल के बयाना करने की जरूरत नहीं थी, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो बोल के ये जुम्मे के खुतबे देने की जरूरत नहीं थी। इस्लाम कबूल कर लेते थे सहाबा, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के अहकामात पूछते जाते और जैसे नबी बताते जाते उसको अपनी जिंदगी में लाते जाते। उनको बार बार जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं रहती। हमारा बचपन से लेके बुढ़ापे तक आदमी मौत के गड़े तक पहुंच जाता, लेकिन उसको बोलते बोलते बोलने वाले के भी बाल सफेद हो जाते और सुनने वालों के भी बाल सफेद हो जाते, लेकिन अमल हमारी जिंदगी में नहीं आता। लेकिन सहाबा को इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, वो सारे अमाल करते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खजूर का टुकड़ा को भी दे करके अज़ाब से, जहन्नुम के अज़ाब से बच जाओ। ठीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? सूरह नूर आयत नंबर 14, हादिहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून। अब ये जहन्नुमिया जब उनको जहन्नुम में डाला जाएगा, जो ये दुनिया में जहन्नुम की कोई फिक्र नहीं थी, अरे कहाँ का अज़ाब मौत साहब, चलो ये दुनिया में जब तक है जीलो ऐश कर लो, ऐश मस्ती कर लो, चले जाओ, वहाँ देख लेंगे। क्या देखेंगे आप? क्या देखेंगे? मौत का फरिश्ता आएगा तो देखेंगे, जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्मों से खींचेगा तो देखेंगे। क्या देखेंगे? तुम्हें गुस्ल दिया जाएगा, व्हाइट कपड़े में कफन लाया जाएगा, कंधे को उठा के ले जाके गले में डाल दिया जाएगा, देखेंगे? कुछ नहीं देख सकेंगे। वहां का वहां देख लेंगे। ये जवाब आज हमारे अंदर से लोग जो है बता दे, बड़े आसानी से बता देंगे, पहला देखा जाएगा, बोला यहाँ की जिंदगी आप गुजारने दो भाई, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। आपको जबरदस्ती कौन खींच के ला रहे हो? आपके हाल पे ही छोड़ा जा रहा है, लेकिन आपको डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई जहन्नुम की आग से बचने की कोशिश करो, उसकी फिक्र करो। तो उस वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, हादिहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून, यही वो आग है जिसकी तुम दुनिया के अंदर झुटलाते थे, जिसका इनकार करते थे, जिसको नहीं मानते थे। आज यही है। जब क्या जवाब निकलेगा?
जब क्या जवाब दोगे जब ये पूछा जाएगा वहां पर, जिस आग को तुम झुठला रहे थे, वहां पर क्या जवाब निकला? कहां भागने की जगह पाओगे? वहां पे कहीं भाग सकेंगे? कहीं पे भागने की जगह मिलेगी? कहीं पनाह लेने की जगह मिलेगी? नहीं, कहीं नहीं भाग सकता आदमी, कहीं दौड़ नहीं सकता, कहीं पनाह लेने की जगह नहीं। कोई मुश्किल कुशा तुम्हारा नहीं आएगा वहां पे, कोई हाजत रवा नहीं आएगा। किसको बुलाते बुला लो, मुश्किल कुशा को बुला लो, हाजत रवा को बुला लो, कोई नहीं बचाएगा वहां पर कोई नहीं बचाएगा। अपने अमाल ही तुम्हें बचा सकेंगे और अल्लाह तबारक व तआला जो है कि रहम ही तुम्हें जो है बचा सकेंगे, वरना जो है आदमी नहीं बच सकता। तो इस तरह से कुरान मजीद में जहन्नुम के बारे में बहुत सी तफसील से जो है बयान अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किए, बड़ी तफसील के साथ और बहुत से मुकामात पर। बात तफसीलात में इंशाअल्लाह कुछ तफसीलात खाली मैं जो है बोलते जाऊंगा, गिनते जाऊंगा, क्योंकि अगर उसको तफसील बयान करना पड़े तो एक दिन काफी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जहन्नुम के बारे में क्या क्या बताया, ये देखेंगे। जहन्नुम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले हो जाएंगे, खाली देखते चेहरे काले हो जाएंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम को देखते ही चेहरे काले हो जाएंगे। अब काले तो क्या मामला होगा ये सोच लें। जहन्नुमी मौत तलब करेंगे, मौत को पुकारेंगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। सूरह फुरकान आयत नंबर 13। जहन्नुम की आग चेहरे के गोश्त को जला डालेगी, चेहरे के इस गोश्त को जला डालेगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। सूरह मोमिनीन आयत नंबर 1 से 4। जहन्नुम की आग न जिंदा छोड़ेगी न मार देगी, न जिंदगी है वहां पर न मौत है, न जिंदगी भी नहीं मौत भी नहीं। मतलब ये क्या मामला है? यानी जिंदगी किसको बोलते हैं? आज दुनिया में अगर हम खुशी से है, ऐश और आराम से है, तो बोला अरे जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, यही ना बोलेंगे? जिंदगी बड़ी आराम से, बड़ी सुकून से, बड़ी चैन से, बड़ी जो है मस्ती में जो है हमारी जिंदगी गुजर रही है। अब उस आदमी को पूछिए जिसके ऊपर तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, आलाम है, मसाइब उसके ऊपर टूट पड़े हैं, तकलीफों में मुब्तला है, परेशान हाल है, उस आदमी को जाकर के पूछो भाई क्या हाल है? अरे क्या हाल पूछते यार, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? इसको भी जिंदगी कहते हैं? यानी ऐसा हाल होगा, वो जिंदगी होगी लेकिन जिंदगी के बराबर नहीं, और आदमी जल के भी मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी उसको। न मौत है न जो है जिंदगी है। सूरह आला आयत नंबर 13। इसी तरह से सूरह हुमज़ा आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे चिकनाचूर कर देगी इंसान को। वो दोज़ख की आग, वो जहन्नुम की आग चिकनाचूर कर देगी। जहन्नुम में काफिरों को बंद करके ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सूरह हुमज़ा आयत नंबर 8 और 9। जहन्नुम में बंद करके ऊपर से दरवाजा लगा दिया जाएगा, दरवाजा लगा दिया जाएगा। अगर दरवाजा नहीं लगाए तो भाग सकते हैं? हाँ भाई, अगर दरवाजा अल्लाह तबारक व तआला बोले डालेंगे तो ऊपर से दरवाजा लगा देंगे। अगर दरवाजा नहीं लगाए तो निकल के भाग सकेंगे? नहीं भाग सकेंगे। दरवाजा लगाने का मतलब क्या? तुम्हें जलील करना है, जिल्लत की जिंदगी तुम्हारे वहां पर तुम्हें गुजारना है, अजाब है। एक जगह बेड़ियों का भी इंशाअल्लाह बात आएगी आगे। तो यानी कि भाग तो नहीं सकेगा अगर दरवाजा नहीं लगाएंगे, लेकिन उसको हसरत होना, उसको अरे दरवाजा भी लगा दिए, दरवाजा भी लगा दिए, कम से कम खुला रहता, उसको ये हसरत होना, ये अफसोस उसके अंदर पैदा होना, इसलिए दरवाजे को लगाया जाएगा। इसी तरह से काफिर फनकार मारेंगे, इस कदर शोर होगा कि कानों पड़ी आवाज सुनाई दे देगी। सूरह अंबिया आयत नंबर 100। कांटेदार जहरीला थोहर का दरख्त जो बदबूदार होगा खाने के लिए लिया जाएगा। सूरह दुखान आयत नंबर 43। अल्लाह तूने जहन्नुम में डाल ही दिया है, ये जहन्नुम का अजाब तू हमें दे रहा है,
जहन्नुम के आग में हमें जला रहा है, भूख लगी है, कम से कम कुछ खाने को तो दे दे, कुछ खाने को तो दे दे। पुकारते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, आखिरकार उनको खाने के लिए दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कांटेदार जहरीला थोहर का दरख्त, थोहर का दरख्त जिसका फल कड़वा जहरीला होता है, अगर इंसानों को खिलाफ सारा बन जाता, इतना जहरीला, इतना कड़वा, और ऊपर से कांटेदार। कांटेदार जब वो खाएंगे हलक में अटक जाएगा, खाएंगे तो हलक में अटक जाएगा, तो वो दिया जाएगा। और बदबूदार, इतनी बदबूदार होगा वो फल कि वो बदबू से भी इंसान मर जाएंगे, और वो दिया जाएगा। अब उसके बाद जब हलक में अटक गया तो बोले कि अल्लाह जरा पानी पिला दे, प्यास लगी है, ये हलक में ये कांटेदार फल अटक गया है और प्यास की शिद्दत है, अजाब तो तू दे रहा है, अल्लाह कम से कम पानी पिला दे, हमारी प्यास बुझा दे। अल्लाह तबारक व तआला उनको खून और पीप देगा, और खौलता हुआ पानी पीने के लिए खून होगा और पीप होगा, और फिर खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 16 और 17। और लिबास, आग का लिबास दिया जाएगा। सूरह हज आयत नंबर 20। हाथ पांव जंजीरों से बांध दिए जाएंगे और उनके चेहरों पर आग के शोले बरसाए जाएंगे। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 49 और 50। हाथों में पैरों में जंजीरें, बेड़ियां डालेंगे। फिर वही बात, अब ये बेड़ियां डालेंगे, नहीं डाले तो आदमी भाग सकता, क्यों डाला जा रहा है? उसको रुस्वा करने के लिए, उसको जलील करने के लिए। दुनिया में कोई कैदी को, भाई पुलिस वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी कैदी को पैरों में जंजीरें बन के बेड़ियां पहना करके बाजार में ले जाओ, उसकी इज्जत जाती नहीं जाती? मत जाना पसंद करता हो, लेकिन वो जो जिल्लत की जिंदगी उसकी हो रही है, उसको जो जलील किया जा रहा है, जो रुस्वा किया जा रहा है, लोगों के सामने हाथों में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, डाल करके लोगों के सामने ले जा रहे हैं। हम देखे हैं बाप लोगों को ले जाकर सऊदी अरब के अंदर हमने देखा है, तो वो शर्म के मारे मर जाएगा, पिघल जाएगा, अफसोस करेगा, हाय मैं अगर ये जुर्म नहीं करा होता तो अच्छा होता, ये जुर्म नहीं करता तो मैं कितना अच्छा होता। तो ये रुस्वा करने के लिए उसको बेड़ियां डाले जाएंगे और उनके चेहरों पर आग के शोले बरसाए, चेहरों पे आग के शोले बरसाए। आग का ओढ़ना और आग का बिछोना होगा। सूरह आराफ आयत नंबर 41। आग की छतरियां और आग का फर्श होगा, नीचे फर्श भी आग का, ऊपर छतरियां भी आग के। सूरह जुमर आयत नंबर 16। आग के भारी तोप गर्दनों में डाले जाएंगे, गर्दनों में जो तोप डाले जाएंगे वो भी आग के होंगे। सूरह हाक़ा आयत नंबर 30। पाँव में भारी बेड़ियां डाली जाएंगी। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 12। जहन्नुमियों को सख्त जहरीली गर्म हवा और सख्त गर्म धुएं का अजाब दिया जाएगा। सूरह वाक़िया आयत नंबर 41 से 44 तक। मुंह के बल घसेटा जाएगा, मुंह के बल घसेटा जाएगा। हाथ पकड़ के नहीं खींचेंगे, बल्कि पैर पकड़ के खींचेंगे ताकि उसके मुंह के बल को घसेटा जाए। ये रुस्वा कुन अज़ाब। सूरह क़मर आयत नंबर 48। आग के पहाड़ होंगे, वहां पर आग के पहाड़ होंगे। उस पहाड़ का नाम सऊद है, उस पर चढ़ने को कहा जाएगा। आग के पहाड़ पे चढ़ सकते हैं? अरे ये दुर्गाले में जो है पहाड़ पे किले के ऊपर चलो तो नहीं चढ़ सकते। आग के पहाड़ पे चढ़ने का अज़ाब दिया जाएगा। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 70। लोहे के गुर्जों और हथौड़ों से मारा जाएगा, लोहे के गुर्जों से और हथौड़ों से मारा जाएगा। सूरह हज आयत नंबर 19। जहन्नुमियों को लोहे के गुर्जों और पत्थर हथौड़ों से मारा जाएगा। आयत नंबर 19 सूरह हज। जहन्नुमियों के लिए आग की कनातीन होंगी। सूरह कहफ आयत नंबर 29। ये कुछ आयतों का जो है जिक्र मैंने आप हज़रात के सामने किया, वरना और भी आपको कुरान के अंदर मिलेंगे तफसील।
तकरीबन तमाम जो है आप आखिरी पारा पढ़ लीजिए 30वें पारे के अंदर, उसमें जो है आपको क़यामत का और जहन्नुम के अज़ाबात का जिक्र मिलेगा। ये कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं मेरे भाइयों, इसके लिए हमें फिक्र करना है, इन अज़ाबात के लिए फिक्र करना है। अब हदीस मुबारका देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में क्या जो है फरामीन है। जहन्नुम में गिराया गया पत्थर, जहन्नुम इतना जो है दोगन है, इतनी गहराई है जहन्नुम के गड्ढे की कि एक पत्थर अगर ऊपर से डाला जाएगा तो 70 साल के बाद वो नीचे तह में पहुंचे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ठहरे हुए हैं, एक आवाज आई, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज कैसी है, ये कहां से आवाज आई? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम में एक पत्थर को डाला है जो उसके तह को पहुंचना है, और वो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने 70 साल पहले डाला था, आज वो नीचे तह में गिरा है, उसकी आवाज। फिक्र करो मुसलमान, फिक्र करो। जहन्नुम को मैदान हशर में लाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर होंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस। जहन्नुम को खींच के जब लाया जाएगा हशर के मैदान में तो कितने फरिश्ते खींचेंगे? 4 करोड़ 90 लाख फरिश्ते उसको खींचेंगे, यानी 70 उसके जो है लगाम होंगे, 70,000 लगाम होंगे जहन्नुम के, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींचेंगे। 70,000 लगाम है, हर लगाम को पकड़ के खींचने वाले फरिश्ते 70,000। इस तरह से पूरी तादाद 4 करोड़ और 90 लाख फरिश्ते उसको खींच रहे हैं। जहन्नुम के एक इहाते के 2 दीवारों के दरमियान 40 साल की मसाफत का फासला है। अबू याला की हदीस। एक इहाता 2 दीवारों के दरमियान, जहन्नुम के 2 दीवारों के बीच में जो फासला, जो डिस्टेंस है, वो 40 साल की मसाफत, यानी 40 साल तक आदमी जहां तक चल सकता उतना जो है 2 दीवारों के बीच में मसाफत है। जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब, आग के 2 जूतियां पहनाई जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा पूछे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा अबू तालिब आपकी बड़ी जो है मदद करे, आपका साथ दिए, आपका जो है दीन के मामले में भी मदद करे, दुनियावी एतबार से भी उनका आपके ऊपर एहसान है, इतनी आपसे मोहब्बत करते थे, इतना चाहते थे, हर घड़ी जो है आपकी फिक्र उनको राहत रहती थी, तो क्या अब उनको वहां पर आजाद में कुछ कमी होगी? ये यानी उनकी जो मोहब्बत आपसे थी, ये मोहब्बत कुछ फायदा देगी आपकी मोहब्बत? तो कहा हाँ फायदा देगी। बोला कैसे देगी? उनको सारे जहन्नमियों में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाएगा, और वो हल्का अजाब क्या है? आग के जूतियां पहनाई जाएंगी पैरों में, आग के जूतियां पहनाई जाएंगी, और उसकी गर्मी की वजह से सर में भेजा जो है ऐसा खौलेगा जैसा आग पर पानी खौलता है। ये हल्का अजाब है। और इसी तरह से मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम की एक दाढ़, जहन्नुमी की एक दाढ़, जो दाढ़ है ना हमारे दांतों में, एक दाढ़ बड़ा दांत उहद पहाड़ से भी बड़ा होगा। उतना जिस्म दे करके जहन्नुम में डाला जाएगा। ऐसा नहीं ये डाल दिया खाली जो है, हाँ देखे तो मुंह काला हो गया, डाले तो नीचे गिरने से पहले तो आदमी जो है वो कबाब बन जाता, कोयला बन जाता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना बड़ा जिस्म देंगे कि उसका दांत उहद पहाड़ के बराबर, उहद पहाड़ से भी बड़ा होगा एक दांत। जहन्नुम के दोनों कंधों के दरमियान तेज रो सवार की 3 दिन के मसाफत का फासला होगा। हाँ अब देखिए जहन्नुम के ये दोनों कंधे, जहन्नुमी जिसको जहन्नुम में डाला जाएगा उसके कंधे कितने होंगे?
یہ دو کندھوں کے بیچ میں 3 دن کی مسافت، یعنی 3 دن تک آدمی کتنی دور سفر کر سکتا، اتنا ایک جہنمی کا جسم اس کے کندھوں کا۔ اس کی فکر کرنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے، اس کو کس سے کہانیاں سمجھ کر ذہن سے نہیں لگتا ہے، بٹھا لیجیے ذہن کے اندر اور تیاری شروع کر دیجیے۔ اسی طرح سے جہنم کے جسم کی کھال، جہنمی کے جسم کی جو کھال ہے، جو جلد ہے، جو چمڑا جو ہے، وہ کیسا ہے؟ 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ 63 فٹ موٹا ہوگا چمڑا ہے۔ یہ جو جلد ہے اس کی موٹائی کتنی ہوگی جہنمی کی؟ 63 فٹ، خالی یہ اسکن کا موٹائی۔ ترمذی کی حدیث۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ ہاں، دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے، غرور کرتے، جو اکڑتے ہیں اپنے آپ کو، ہے کچھ بھی نہیں لیکن اکڑنا بڑا رہتا، تکبر، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تکبر کر کے، اللہ زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر دھسا دے گا۔ تکبر، غرور نہیں۔ یہ تکبر اور غرور کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں چونٹیوں کے ویسا جسم دے گا، چونٹیوں کا ویسا جسم دے گا۔ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے کوہر کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دے۔ ان کو جو کھلانے والا جو کھانا ہے، جو توہر کا جو درخت کا پھل دیا جائے گا، وہ دنیا والوں کو اگر دے دیے، جانداروں کو، تمام جاندار، انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، جنات بھی ہے، سب کی معیشت جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اتنا بڑا خطرناک جو ہے وہ کھانا ہے۔ احمد، نسائی، ترمذی اور جو ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکیں، روئیں گے، اتنا روئیں گے، آنکھوں سے اتنے آنسو نکلیں گے ان کے کہ وہ آنسو اتنے نکلیں گے کہ اس کے اندر کشتی چلا سکتے، کشتی چلا سکتے۔ اس کی فکر کرو مسلمان، جہنمی اس قدر روئیں گے۔ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول یعنی چند لیٹر پانی دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے، یعنی کہ ان کو جو پلانے والا جو مشروب ہے، جو چیز پلائی جائے گی، یا خون یا پیر، وہ اگر دنیا میں ذرا ڈال دیے، ایک ڈول پانی، ایک ڈول مطلب 1 لیٹر پانی، 1 لیٹر وہ خون یا پیر اس دنیا میں اگر ڈال دیں گے تو ساری مخلوق بدبو اس کی محسوس کرے گی، ساری مخلوق۔ اسی طرح سے جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچے گا۔ گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے کہ وہ ڈالنے سے سر میں سوراخ پڑ جائے گا، اور سوراخ پڑنے کے بعد وہ چھید کر کے پیٹ کے نیچے کا اور پیٹ پہ جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، پیٹ پہ اترے گا سر میں سوراخ کر کے، اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے ان سب کو جو ہے کاٹ ڈالے گا، اور سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔